Hello students. Yes, let's start. Hello everyone. Today I'm going to explain the most important chapter of the class 11th, that is uh, redox reaction, right? So I'm giving some little bit basic information about the redox reaction. What are the different uh, method that can be identified, uh, the different reaction, whether it is redox or not, right? Uh, so let's start. Yes. I hope the screen is visible. Okay, let's start. I'm talking about the redox reaction. This is the all about the redox reaction. Now, redox term is basically, if you analyze the redox, you will get two terms. That is, first is reduction and second is oxidation. And what is reduction and what is oxidation? The most important thing that have to understand. There are basic concepts regarding the reduction, that is removal of oxygen. And what is oxidation? Addition of oxygen. If you think about on the basis of the hydrogen, then with respect to the hydrogen, reduction will be what? Addition of hydrogen. Like combinedly, I am giving the example on the basis of removal of oxygen as well as the addition of hydrogen. That is, if you think about PbO plus PbS gives you Pb plus SO2. There is this Pb, if you think about this Pb converts into Pb neutral. There is replacement of oxygen takes place. That's why this is the reduction. And if you think about the sulfur get oxygen, that is the addition of oxygen takes place. That's why this is called oxidation. Basically, reduction and oxidation both are the simultaneously occurring process because takes place simultaneously. It is not possible individually to any elements or atoms get or compound get reduced only or oxidized only without absence of the opponents, right? That means what? अगर कोई कहीं पर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा, तभी पॉसिबल है रिडक्शन, राइट? The most important thing is this. Now, second, reduction and oxidation, redox on the basis of electron. अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर करें तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कैसे हम करेंगे? रिडक्शन इज and one thing on the basis of hydrogen, the oxidation will be on the counter of that removal of hydrogen, removal of H2.
Now, think about on the basis of the electron, the reduction will be addition of electron. And this is the latest concept, one of the latest concept. If you think about the example of that addition of electron, that is, if you have Zn2 plus as an individual reaction, because this is not possible to have Zn2 plus and you add the electron individually, because there must be the source of that electron so that we can add this electron to the Zn2 plus. तो ये जरूरी है कि कहीं से आया होगा, हवा में तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं ना, ये कहीं से आया होगा, तो जहां से भी आया होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है. तो Zn2 plus ion converts into Zn solid, that is reduction. And what about oxidation? Removal of electron. अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो if you have O2 minus, when O2 minus converts into O2, then 4 electron loss. This is the oxidation, right? If you have oxygen, and if there is any confusion regarding the oxygen, you can take the another example, Cl minus. It will convert into Cl2 and 2 electron left out. But मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है. इसके काउंटर में, ऑक्सीडेशन के काउंटर में रिडक्शन होना जरूरी है और रिडक्शन के काउंटर में ऑक्सीडेशन होना जरूरी है. अभी आप पूरा रिएक्शंस देखेंगे कि कैसे एक रिडक्शन हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है. बट बिफोर प्रोसीडिंग इन डिटेल रिडॉक्स रिएक्शन, हम एक चीज बताना चाहेंगे, दैट इज द वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. The topic is valency and ऑक्सीडेशन नंबर. वैलेंसी तो आपने सुना होगा पहले भी, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सुना होगा, पहली बार आप पढ़ रहे हो. तो व्हाट इज द वैलेंसी, और हम दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे. पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, जो मैंने नोट्स में भी डिस्कस किया है. वैलेंसी इज व्हाट एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट. वैलेंसी इज, इट इज maximum capacity of any atom to lose or gain of electron, or you can say combining capacity. Combining कैपेसिटी. और इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि वो हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. दिस इज आल्सो ऑल अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी. एंड दिस इज व्हाट इट इज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और gained by an atom in a molecule. किसी एक एटम के मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया है, उसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? वैलेंसी कभी भी नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता. बट ऑक्सीडेशन नंबर में बी जीरो, ये जीरो हो सकता है. हो सकता है कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन किया है उतना ही वो लॉस किया है, तो नेट चेंज विल बी जीरो. दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी जीरो. इट नेवर बी फ्रैक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव. सॉरी, yes, that's right. And oxidation number may be fraction positive or negative. The positive negative depends on the whether it takes the electron or lost the electron.
लेकिन वैलेंसी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा। दिस इज द बेसिकली कैपेसिटी। अगर इसको हम ध्यान से समझे तो वैलेंसी एक कैपेसिटी को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि यू कैन ईट 8 ब्रेड्स, 8 चपाती आप खा सकते हो मैक्सिमम, लेकिन आज आपने 2 खाया है, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, 2 जो खाया है। बट वैलेंसी इज 8, किसी का 8 हो सकता है। जैसे इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है वैलेंस सेल में, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, लेकिन देता कितना है किसी कंपाउंड में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड। अब हियर इज द सेंट्रल एटम इज सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 यही होगा। इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, कैपेसिटी है, तो वैलेंसी विल बी 6, वैलेंसी इज 6। बट उसी सल्फर का इस सल्फर डाइऑक्साइड में कितना है, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड में उसने 4 इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +4। दिस इज +4 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, but valency is 6. This is the difference between oxidation number and valency. ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अभी सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो वो हम सीखते हैं अभी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसके कुछ रूल्स है जो रूल्स आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन से रूल्स है? रूल्स नंबर 1, ध्यान से समझना है और एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूं। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ a molecule इज इक्वल टू 0। किसी मॉलिक्यूल में उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज। इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, तो अगर मॉलिक्यूल H2O है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O विल बी 0, टोटल ऐड करने के बाद। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का होता है, लेकिन दोनों एटम का निकालने के बाद भी ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए। और आयंस की बात करते हैं, लाइक Cl माइनस, देयर इज द Cl माइनस पर कितना चार्ज है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। लाइक सल्फेट SO4 2 माइनस, तो इस पर चार्ज -2 है, तो -2 विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in their elemental form, elemental form is equal to 0। like मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है, O2। इसमें दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, राइट। इंडिविजुअल भी 0 है, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल तो 0 होगा ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल भी 0 होगा। यहाँ पर इस ऑक्सीजन का 0 नहीं है, यहाँ समझना है, इस हाइड्रोजन का 0 नहीं है, दोनों मिला करके 0 है, राइट। फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग तरीके से होगा। ए पार्ट इन जनरल, मतलब जनरली जो होता है, इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 ऑक्सीजन का। इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में होगा -1। पेरोक्साइड किसको कहते हैं? पेरोक्साइड जिसमें 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, जैसे H2O2। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होगा HOOH,
तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेरोक्सी लिंकेज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड। जहां भी होगा ऐसा पेरोक्सी लिंकेज, उस ऑक्सीजन का -1 होगा। सी पार्ट इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में इसका होगा -12। सुपर ऑक्साइड कौन सा होता है? सुपर ऑक्साइड होता है जैसे KO2, RbO2, ऐसे कंपाउंड सिलेक्टेड है सुपर ऑक्साइड। 3 ही सुपर ऑक्साइड होता है CSO2 पूरे केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -12 है। एंड डी पार्ट यहाँ पर लिख देता हूं, डी पार्ट दैट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड में चूंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, उसको देना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लस में ऑक्सीजन हो जाता है। जब जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा, तो फ्लोराइड लेता है, तो फ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 या +2। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 ही फ्लोराइड होता है, OF O2F2, O2F2 में +1, एंड दूसरा एग्जाम्पल OF2 में +2, दैट्स इट, 2 ही होते हैं। तो ये ऑक्साइड ऑक्सीजन का हमने बताया आपको, राइट। अब हम हाइड्रोजन का बताएंगे, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। 5th point I am talking about, point number 5, oxidation number of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कैसे होगा, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन में भी 2 तरीके का होगा, इन जनरल +1 हाइड्रोजन का, बट इन हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन राइट साइड में है एक्सेप्ट NH3, उसमें -1 होगा। एग्जाम्पल जैसे मेटल के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड जो बनता है वो हाइड्राइड होता है, लाइक CaH2 राइट साइड में है, तो यहाँ पर -1 है। उसी तरीके से NaH राइट साइड में है, बट एक्सेप्ट एक को छोड़ के NH3 में राइट साइड में होते हुए भी वो हाइड्राइड नहीं होता, उसका +1 में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका माइनस में होगा। 6ठा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन जनरल -2, और इसके अलावे जो भी होगा आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, अभी रूल सिर्फ बता रहे हैं आपको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन, इन जनरल इसका होता है -1। इन जनरल का मतलब है कि इसके अलावे भी होते हैं, बट वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दीज आर द डिफरेंट रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इन सारे रूल्स को अप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इसको हम रिमूव करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल ऐसा होगा जैसे H2SO4, इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, जनरली सेंट्रल एटम का पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो रूल नंबर 1 हमने जो लिखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 0, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब H2SO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब बाकी जो है सल्फर का निकालना है, लेकिन रेस्ट का हम स्ट्रक्चर को देखते हुए उसका ऑक्सीडेशन नंबर डालेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, तो इसका जनरल वाला डालेगा, तो +1 × 2 हो जाएगा। ये इस हाइड्रोजन का हो गया, प्लस सल्फर का आपको निकालना है, सबको ऐड करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जनरल वाला डालेंगे, नॉट नॉर्म पेरोक्साइड, या वो हम चेक करेंगे इसको। कैसे हमें पता चलेगा कि ये पेरोक्साइड है या नहीं है? तो स्ट्रक्चर बना करके पता चलेगा। जैसे आपने वेस्पर थ्योरी में स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये स्ट्रक्चर है इसका, सल्फर H2SO4 का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, सारे ऑक्सीजन अलग अलग है, तो इस वजह से -2 हुआ। 4 ऑक्सीजन था इसलिए 4 आ गया। अब टोटल को कैलकुलेट करके सल्फर निकालेंगे तो +6 आएगा। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर।
बट यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, H2S2O8। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको जनरल जैसे इस मेथड में को अप्लाई किया है हमने, वैसे ही करेंगे तो टोटल 0, तो क्या होगा ध्यान से देखना है। तो +1 × 2 ये हाइड्रोजन का हो गया, प्लस सल्फर का निकालना है तो 2 सल्फर है तो 2s लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन 8 है तो 1 ऑक्सीजन का -2 × 8 = 0। तो यहाँ पर जो सल्फर का निकलेगा तो कैसा कितना निकलेगा, यहाँ 2 + 2 यहाँ से हो गया और 16 यहाँ पर हो गया, तो 2 माइनस हो जाएगा उसमें, तो प्लस में तो +7 आएगा। इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो, जो कि नॉ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फर का वैलेंसी मैक्सिमम कैपेसिटी +6 है, यानी 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं दे सकता। यहाँ तो +7 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूँ आपको, स्ट्रक्चर नहीं पता आपको तो आप कुछ नहीं कर सकते इस पे। ये दिस इज द H2S2O8। यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड है, बट बाकी ऑक्सीजन नॉर्मल है। तो इसमें से 8 में से 2 ऑक्सीजन को हम पेरोक्साइड की तरफ +1 डालेंगे, जो पेरोक्साइड में होता है, जो मैंने पीछे अभी रूल बताया, और बाकी हम प्लस -1 डालेंगे और बाकी का -2 डालेंगे। तो 2s डाल दिया। अब यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है तो इसमें से -1 × 2 कर दिया एक के लिए, प्लस और बाकी 6 के लिए -2 × 6 कर दिया = 0। अब सल्फर का निकालोगे तो आएगा +6। दिस इज राइट। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड, राइट। अब मैं इस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर रेडॉक्स रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका प्रैक्टिस आप कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। असाइनमेंट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। तो नाउ we'll see redox reaction on the basis of oxidation number के basis पर redox reaction. Like let's say example, here is the one redox reaction, Cr2O7 2- plus Fe2 plus H plus gives rise Cr3 plus Fe3 plus H2O. This is the reaction. इस तरीके कोई भी रिएक्शन उसमें H+ OH- अगर होगा तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज H+ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं। बाकी जो आयंस है उसको देखिए कि वो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो Cr2O7 2- है, टोटल चार्ज = -2, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, रूल नंबर 2। अब यहाँ Cr का निकालना है तो 2Cr प्लस ऑक्सीजन, यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन नॉर्मल है इसका, ये मुझे पता है, इसलिए आप बना के देख सकते हैं। तो नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है तो -2 × 7 = -2। अब यहाँ पर एक Cr का निकालोगे तो कितना आएगा, +6 आ गया। अब यहाँ पर Cr का +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर Cr का एक ही Cr है, उस पर +3 है, तो रूल नंबर 2, जितना चार्ज है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो +3। तो दिस Cr +6 कन्वर्ट्स इनटू +3। मतलब क्या हुआ कि +6 से +3 में जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है या लूज कर रहा है, ये समझना है। तो +6 मीन्स और +3 मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एडिशन हुआ होगा, तभी प्लस चार्ज कम हो रहा है। The oxidation number reduces or addition of electron takes place. So that's why reduction takes place. तो इसका मतलब रिडक्शन का एक डेफिनेशन आ गया, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर reduces, ऑक्सीडेशन नंबर reduces, तब वो रिडक्शन कहा जाएगा। अब ऑन द काउंटर ऑफ दैट यू हैव टू सी Fe2 plus converts into Fe3 plus,
What is the oxidation number of Fe2 plus? Obviously +2, because rule number 2 is tells what? The total number of charge is equal to the oxidation number of ions and even molecule also. Here is the +3. तो +2 से +3 में जा रहा है. That means this Fe2 plus must replaces electron from this. एक इलेक्ट्रॉन रिप्लेस किया अपने आप से, तभी वो +3 में गया है. तो रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में देखिए तो दिस +2 इज this is the +2, this is the +3. That means oxidation number increases. So that means what? Oxidation is what? Oxidation number increases. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन कहा जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन. दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पार्ट आपको हर जगह काम आएगा. जहां भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जहां भी जरूरत आएगी, स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो और भी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी बार बार इन द 12th क्लास ऑल्सो, राइट. Another topic of this chapter of the 11th class syllabus, that is the balancing of redox reaction, and then electrochemical cell and electrolytic cell. The electrochemical cell, electrolytic cell, related to that topic, you will study entire one chapter in the 12th class, right? तो वो पूरा डिटेल आप उस वहां पर पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. This is the most important thing. This is the basic that you have to understand. अगर आप इसको ग्रास्प कर लेते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा related to that. Okay, that's right. Thank you very much.